ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بات لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کے سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کرے نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورسیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے,
हमें किसी ने आग में नहीं डाला है, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला ना है। ऐसे बहुत सारे बदर का वाकया हमने सुना। 313 लोगों को क्या था जज्बा, तवक्कुल था कि अल्लाह के नबी साथ हैं, हम राजी हैं, और अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन से निकलना है, सुसाइड के ख्याल दिमाग में ना आए, तो हमें स्ट्रांगली अल्लाह पर बिलीव करना होगा। ये आयत बता रही है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा इधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें, फिर देखें आप कैसे निकलते हैं। ये रातें अल्लाह से बातें करने की हैं, ये रातें अल्लाह से गिड़गिड़ाने की हैं। याद रखिए, अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो, तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए, हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और एक नियत कर लें। आज 25वीं शब है, ये नियत कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आप, आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतनी दुआ मांगे, इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया, ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है, खुदारा इससे निकल आइए। हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांडें खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं, मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा किराम ने अर्ज की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों, पड़ोसियों, माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे, और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहां मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है, जब हम किसी बहुत बड़े अमीर आदमी को देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी इस मस्जिद में दोनों कैटेगरी आ रही है, तो चले मुझे अच्छा है दोनों को मैसेज करने का, बात करने का फायदा हो जाता है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर लें, सब याद कर लें, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली
नेकूकार हैं? बताओ कौन ज्यादा सुकून में, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर, और सवाल करने वाले अशरा मुबशरा में से सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन कितना प्यारा है। कहते हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूं। मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है हम में से? आए हाय, बस आप इसकी खूबसूरती समझें। अगर मैं और आप मुस्तजाबुद दावात बन गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना। वॉट एवर प्रॉब्लम एंड कैलेमिटी कम टूवर्ड्स मी, मैं दुआ करूंगा खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वन लाइनर आंसर दिया। आका ने फरमाया, ए साद, अपनी गिजा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओ। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। बस हमारा निवाला पाकीज़ा हो, हमारा रिस्क पाकीज़ा हो। छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, यार वो आगे बढ़ गया, मेरा तो फिर 2000 गज का बंगला कैसे बनेगा, तो V8 किधर से लूंगा, तो जनाब इतना ट्रेवल कैसे होगा। ये सब छोड़ दें आप हिम्मत रखिए। और मैं आपको एक और जुमला आज बता देता हूं, जिस शख्स ने हराम को छोड़ा है ना, वो नीचे नहीं गया है। दोबारा शुरू में मैंने क्या कहा था? एक मेरा और आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। आप मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने कई बार ये वाकया बयान किया, चलो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं। एक मुबल्लिग को एक बंदा मिला और कहता है, जनाब मैं आपका बयान सुना और मुझे जहन बन गया हराम छोड़ने का। यूरोप की बात है। वो कहते मेरे स्टोर पे शराब बिकती है, बहुत और भी सामान बेचता हूं, लेकिन शराब भी बेचता हूं। मैं शराब बेचना छोड़ूंगा, पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा, बच्चों का क्या होगा? तो उस मुबल्लिग ने उस बंदे को यह कहा, जो मैं आप सबको और मेरे व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, कि यार एक बात बताओ, तुम हराम कमा रहे हो? कहता है हाँ, अल्लाह दे रहा है, रोजी मिल रही है। हाँ मिल रही है। तुम हलाल कमाओगे तो क्या वो रोजी बंद कर देगा? मुझे बताएं ना, रिस्क देने वाला कौन है, राज़िक कौन है? मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, वो दे रहा है, और मुझे डर ये है कि मैं उसको राजी करूंगा और वो बंद कर देगा। या तो रोजी देने वाला कोई और होता तो समझ आती बात कि भाई इबादत अल्लाह की करूंगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जब रोजी देने वाला रब है, मेरा ईमान है, अकीदा है, इसका मतलब या तो वो ईमान कमजोर है, और अगर वो तवक्कुल मिल गया तो ये डेफिनेटली होगा कि आप अल्लाह की नाराजी छोड़े, आपको अंदाजा नहीं होगा कहां से रोजी आना शुरू हो जाएगी। हुआ क्या पता है? सुने, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाकया बता रहा हूं। 1 या 1.5 साल बाद उसी मुबल्लिग की उसी नौजवान से फिर यूरोप में मुलाकात हुई। वो नौजवान ढूंढता हुआ आया, कहता आप मैं याद हूं आपको? कहते यार कुछ याद तो आ रहा है, आपसे मुलाकात हुई थी। कहा मैं वही हूं जिसने आपसे वादा किया था मैं शराब नहीं बेचूंगा। आपने कहा था कि अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, ऐसा ही हुआ है, मैंने शराब बेचना छोड़ दी, पता नहीं किधर से रोजी आ रही है, अल्लाह ने बरकत डाल दी है। ये एक टेस्ट होता है, ये एक प्लान आपको पहले लगेगा नहीं होगा, और बाज औकात कुछ दिनों तक आजमाया भी जाएगा। आप बोले यार मौलाना साहब ने कहा था कि भाई हराम छोड़ दो, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो रोज की रिश्वत 10,000 रुपए लेता था, मैंने छोड़ दी, आज तो 11,000 रुपए नहीं आए। ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन आजमाया जाएगा। हो सकता है अल्लाह थोड़ी में ही तुम्हें सुकून अता कर दे, तुम्हें बरकत डाल दे, या फिर तुम्हें अपने गैब के खजानों से अता फरमाए। अब एक वसवसा, यार मौलाना साहब कह तो रहे हैं दुआ तो करता हूं, मसला हल ही नहीं होता। मक्के जाकर भी दुआ की, मदीने जाकर भी दुआ की, फलां मजार शरीफ में भी की, फलां बुजुर्ग से भी करवाई, 10 साल से दुआ कर रहा हूं, मसला तो हल ही नहीं हो रहा। आप कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। अब शैतान है ना कोई तो दिमाग में बात डालेगा। पहले तो अल्लाह से जब मोहब्बत कर लोगे ना, तो हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था? मेरा रब देख रहा है ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले पावा हूं। अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में आजमाइश लिखी है, मैं इस पर भी राजी हूं, क्योंकि बहुत कुछ दिया है ना। है हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक कौल याद आ गया। एक बंदा सर पे पट्टी बांध के जा रहा था। आपने देखा सर पे पट्टी बंधी, क्यों बांधी है पट्टी? का सर में दर्द है इसलिए पट्टी बांधी है। आपने फरमाया कभी सेहत की पट्टी बांधी थी? ये जुमला बहुत गहरा है, समझो इसको। यानी ये आप अल्लाह की वलियां है ना, ये अल्लाह वाले ने इनके नजदीक ये भी शिकायत है कि सारे शहर को बता रहे हो कि अल्लाह ने आज दर्द दिया है। एक दिन दर्द दिया तो तुम पट्टी बांध के घूम रहे हो। 29 दिन सेहत दी तो लोगों को बताया अल्लाह ने कितना दिया है, वो कभी उसको आपने काउंट किया? कभी थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा कर दिया तो आप बाबेला करना हम शुरू कर देते हैं। सारी जिंदगी छांव में रखा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बीमारी आती है, बाकी जिंदगी तो ऐश की है। तो अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। तो मैं ये कह रहा था वसवसा क्या है कि यार मांगी जा रहा हूं, काम तो होता नहीं है। अब मैं उस वसवसे की काट आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। रमजान के दिन है, घरों में कई लोग साथ इफ्तारी सहरी करते हैं, कभी कभी किसी का गला भी खराब हो जाता है। आपका छोटा बेटा हो, बच्चा हो या भाई हो, उसका गला खराब हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, और वो कहे अब्बू मैंने शरबत पीना है ठंडा और आज आइसक्रीम भी खानी है। हाँ भाई बताएं, खिलाएंगे? जवाब दें। नहीं खिलाए। अच्छा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नहीं मैंने खानी है, आज मैं खा के रहूंगा, आप खिला देंगे?
अच्छा आप भी नहीं खिलाएंगे, रो रहा है फिर भी नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। अच्छा अब आपका एक दोस्त साथ बैठा है, कहेगा यार कितने जालिम अब्बू हो, बच्चा रो रहा है खिला दो आइसक्रीम, क्या हो गया? आप क्या रिप्लाई देंगे? मैं वालिद हूं, मुझे पता है कब मेरे बच्चे को क्या देना है। ये कहते हैं ना, मैं वालिद हूं, मुझे मालूम है मेरे बच्चे को कब क्या देना है। अब जरा दिल से मेरा जुमला सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं रो रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं सबसे दुआएं करवा रहा हूं, नहीं हो रहा मेरा मसला हल। अरे मान लो ना ये मेरे लिए बेहतर है, मेरा रब नहीं कर रहा ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा नहीं सोचते, तो वो खालिक अगर उसको यही मंजूर है तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। काश ये जिस दिन ये तवक्कुल का लेवल मिल गया, आपको कभी किसी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं होगी। काम हो गया तब भी राजी रहोगे, नहीं हुआ जब भी राजी रहोगे कि मेरे रब ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए। मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं, बच्चों को कहां समझ आती है, वो कहते हैं अब्बू अच्छे नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं दे रही चीज। अब्बू अम्मी को पता है क्यों रोक रहे हैं। अरे मेरी आपकी अक्ल इतनी, हमें ये समझ है कि बच्चे को कब क्या देना है क्या नहीं देना। जिसने कायनात बनाई उसे नहीं पता मुझे कब क्या देना है क्या नहीं देना। कुछ लोगों को माल उलमा कहते इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फक्र फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अताएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते, क्या दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते? मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया? मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते हैं, या रसूल अल्लाह। आप जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी, मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, ए अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना। नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे, नहीं होते बच्चे पैदा क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में। कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने, मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अज़ान की सुनी, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अज़ान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से, अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार, अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमान हूं, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है, यकीन करो। जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह आज की रात तू हमें अपना भरोसा अदा कर।
ہم اسی سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں, ہل جاتے ہیں, ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے, ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا, ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے, مالک, مبارک رات ہے, ہمارے وہ جملے معاف کر دے اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے اور ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سیکھ کر جانا ہے اور قرآن کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, تیرے گناہگار بندے, سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے میرے کریم مولا, جن لوگوں کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما, جن کی عبادتیں قبول کی ان کا واسطہ ہماری عبادتیں قبول فرما. اے اللہ, جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقے بھی قبول فرما. اے اللہ, اے کریم, جن کی بخشش کر دی ہے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ, آج ہم نے بیان سنا ہے, اے کریم, ہمیں تجھ پر سچا بھروسہ عطا فرما. اے اللہ, زبانی تو بات کرتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. اے اللہ, تیرا کس زبان سے شکر ادا کرے. سچی بات تو یہ ہے کہ تیرے احسان ہم گن بھی نہیں سکتے, اتنے تو نے ہم پر احسان کیے ہیں. اے اللہ, تیرے ہر احسان پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری ناشکریاں معاف فرما دے, اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے پروردگار, تیرا ہی فرمان ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اے اللہ, ہمیں شکر گزار بھی بنا دے اور ہماری نعمتوں میں برکت بھی عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے کریم, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا. اے اللہ, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ, قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما. اے کریم, بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوئے ہوں گے. اے اللہ, جو بیمار ہیں, اے کریم, اے شفا دینے والے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم, تیرے خزانوں میں کبھی نہیں, آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں, طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ, جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. اے اللہ, مبارک رات ہے, آج سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ, جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے, اے اللہ, صبح ہونے سے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما. یقیناً ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے, آسان نہیں ہے. اے اللہ, ہمارا ایمان ہے لوگوں کے لیے بڑا ہوگا, تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ, ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے. اے اللہ, جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے, جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. اے اللہ, ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے رب کریم, ہمیں زوال نعمت سے بچا. پروردگار, اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے کریم مولا, تیرے خزانوں میں کبھی نہیں, جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے, جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم وہ دعا کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا اور اللہ نے اس اندھیرے سے, اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی. اپنی پریشانیاں, اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک تاک رات عرض کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ.